زبیدہ اور راجکماری دونوں آپس میں گلے مل کے روتی ہیں۔ زبیدہ کہتی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے آپ کی جان بخش دی۔ راجکماری کہتی ہے مت رو میری بہن، اللہ کے ہاتھوں زندگی اور موت ہوتی ہے، جب تک اللہ نہیں چاہتا ہے کوئی نہیں مرتا۔ دونوں بہنیں آپس میں گلے مل کے خوب روتی ہیں۔ زبیدہ اپنی بڑی بہن سے کہتی ہے آپا جان، آپ کو ملکہ عالیہ بننے کا اتنا شوق تھا کہ آپ نے موت کو گلے لگا لیا۔ شہزادی کہتی ہے نہیں زبیدہ، یہ میں نے ملکہ عالیہ بننے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے ابو کی عزت بچانے کے لیے کیا ہے، تاکہ در قیامت میرے ابو کی پکڑ نہ ہو، اور مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہو اور مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں۔ مجھے اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے، وہ خود کو کر بلند اتنا کہ خدا تقدیر لکھنے سے پہلے بندے سے پوچھے بتا تیری رضا ہے کیا۔ زبیدہ اپنی آپا جان سے کہتی ہے ماشاء اللہ آپا ماشاء اللہ، مجھے فخر ہے اپنے اوپر کہ میں ایک ایسی ہستی کی بہن ہوں جو اللہ اور اس کے رسول پہ پکا ایمان رکھتی ہے۔ اب مجھے بھروسہ ہو گیا ہے کہ آپ اپنے پختہ ایمان کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گی اور بادشاہ کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لیں گی۔ زبیدہ اپنی آپا سے کہتی ہے آپا بتائیے کیا بادشاہ سلامت نے اپنا ظالمانہ رواج، اپنا عہد، اپنا وعدہ ختم کر دیا ہے یا ابھی ہے؟ آپا بتائیے کیا بادشاہ سلامت نے آپ کی زندگی بخش دی یا ابھی بھی وہ اپنے وعدے پہ اڑے ہیں؟ زبیدہ کی بات سن کے شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کے دربار میں کچھ سپاہی حاضر ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کے دربار میں کچھ سپاہی حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلامت سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنا وعدہ توڑ دیا، کیا آپ اپنے عہد سے مکر گئے ہیں؟ بادشاہ سلامت کہتے ہیں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، میں ایک کہانی کے چکر میں اپنا وعدہ نہیں توڑا ہوں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو مجھے عورت ذات سے نفرت ہے؟ میں اپنا وعدہ جلد پورا کروں گا۔ رات ہو جاتی ہے، شہزادی اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ بادشاہ سلامت کے دل میں عورتوں کے لیے عزت ڈال دے، بھلے وہ محبت نہ کرے پر عورت کی عزت کرے۔ بادشاہ کے آنے کا سمے ہو جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت شہزادی کو دیکھ کے غصہ کرتا ہے۔ شہزادی بادشاہ کو سلام کرتی ہے، کہتی ہے السلام علیکم، آپ کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ بادشاہ کہتا ہے بس تمہارے پاس تو زندگی کم ہے، بس آج کی رات کی دکھی زبان سو جاؤ۔ شہزادی بولی مجھے خوشی ہے کہ کل میں مر جاؤں گی، پر مرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان اعلیٰ بولتے ہیں کہ مجھے کل کا قصہ سنائیے، کیا جن نے تاجر کو معاف کر دیا تھا؟ جو حکم میرے حضور، ایسا ہوا تھا کہ تاجر کے اوپر ان کی بہت غصہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، پر تاجر اس سے بہت اصرار کرتا ہے۔ تاجر جن سے کہتا ہے میں روز قیامت تیرا گریبان پکڑوں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ میں اس کی وجہ سے قرضداروں کا قرض نہیں ادا کر پایا اور اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پایا، قیامت کے دن تیری پکڑ ہوئے گی۔ جن نے تاجر سے کہا تو پکا ایمان والا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ تو سچ بولتا ہے، مجھے تیری باتوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔
जिस अल्लाह को तू इतना मानता है उसी अल्लाह की कसम खा और तू वादा कर कि तू मेरे पास कर्जदार के कर्ज और अपनी बेटी की शादी करके वापस आएगा। उसके बाद मैं तुझे कत्ल करूँगा और अपने बेटे का बदला लूँगा। ताजिर कहता है, मैं अपने रब को गवाह रखता हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी करके और कर्जदारों के कर्ज अदा करके ज़रूर आऊँगा। ये मेरा वादा है तुझसे। जिनों का सरदार कहता है, ठीक है, जा तू अब अपनी बेटी की शादी करके और कर्जदारों के कर्ज अदा करके ठीक 40वें दिन तू यहाँ पे हाजिर हो जाना, उसके बाद मैं तुझे कत्ल करूँगा। इतना कह के जिनों का सरदार पानी के अंदर चला जाता है। ताजिर मौत की वादी से रवाना होके अपने घर की ओर चलता है। ताजिर अपने आप से बातें करता है, कहता है, मुझे 40 दिन का समय मिला है। 40 दिन के अंदर अंदर मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है, कर्जदारों के कर्ज भी अदा करने हैं, फिर मुझे उस जिन के पास जाना है। ताजिर तब अपने घर को जाता है। उसे घर के अंदर कोई भी नहीं दिखता है। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि सब लोग कहाँ चले गए और वो सबको आवाज़ें लगाने लगता है। ताजिर की आवाज़ सुन के उसकी बेटी आती है और कहती है, अब्बू जान, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप आ गए। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे अब्बू जान अभी तक क्यों नहीं आए। ताजिर की बेटी अपने अब्बू जान के गले मिल के बहुत रोती है और आवाज़ लगाती है, अम्मी, दादी, जल्दी आइए, अब्बू जान आ गए हैं। ताजिर की बेटी की आवाज़ सुन के उनकी मम्मी और उनकी बीवी दोनों आ जाती हैं और उनका एक छोटा बेटा होता है, वो भी आ जाता है। सब मिल के ताजिर से बातें करते हैं, ताजिर का हाल चाल पूछते हैं, बेटा सफ़र कैसा रहा। ताजिर खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता। ताजिर की बेटी आती है और कहती है, अब्बू जान, खाना खा लीजिए। सब लोग मिल के हंसी खुशी खाना खाते हैं। ताजिर की बेटी अपने अब्बू जान के लिए कोरमा बना के लाती है और अपने अब्बू से कहती है, अब्बू जान, कोरमा खा लीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। ताजिर अपनी बेगम से कहता है, बेगम साहिबा, बेटी ने तो बहुत अच्छा कोरमा बनाया है। रात का खाना खाने के बाद इन लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं। साजिदा अपने शौहर के पैर दबाती है और देखती है कि मेरे शौहर बहुत परेशान लग रहे हैं। साजिदा अपने शौहर से कहती है, जब से आप आए हैं मैं आपको बहुत उदास देख रही हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे बता सकते हैं, शायद मैं आपकी कुछ परेशानी कम कर दूँ। साबिर कहता है, नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा तुम बताओ, तब मैं सफ़र को चला गया था तो घर में क्या हो रहा था, तुम लोग क्या कर रहे थे। साजिदा कहती है, हर सुबह इसी उम्मीद पे होती थी कि आज आप आ जाएंगे। बच्चे आपका बहुत इंतज़ार करते थे, बेटी आपको बहुत याद करती थी, अम्मी जान नमाज में दुआएं करती थी कि मेरा बेटा सही सलामत आ जाए। हम लोग आपकी फ़िक्र में रहते थे, हमेशा अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह आप जहाँ भी हों आपको अल्लाह हर मुसीबत से बचाए। साबिर अपनी बेगम से कहता है, साजिदा अब आप सो जाइए, आप बहुत थक गई हैं। ताजिर अपने घर वालों के लिए बहुत सारा सामान खरीद के लाता है। अपनी अम्मा जान के लिए तस्बीह खरीद के लाता है। कहता है, अम्मा जान, मैं आपके लिए तस्बीह लाया हूँ। अम्मा जान तस्बीह ले लेती हैं और कहती हैं, बेटा मैं तस्बीह पढ़ूँगी और नमाज़ पढ़ूँगी तो मैं अल्लाह से कहूँगी, या अल्लाह मेरे बेटे की उम्र को लंबी कर दे।
ताजिर अपनी अम्मा जान को बताता है, अम्मा जान, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सारा सामान खरीद के लाया हूँ। मैं बहुत सारे कीमती ज़ेवर लाया हूँ, कीमती सूट लाया हूँ और कंगन लाया हूँ। ताजिर अपनी बेगम से कहता है, बेगम मैं तुम्हारे लिए ज़ेवर लाया हूँ। बेगम साहिबा कहती हैं, मेरा कंगन तो आप हैं, मेरा ज़ेवर तो आप हैं, अल्लाह ने आपको सही सलामत भेज दिया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। मैं ये ज़ेवर आपकी जान का सदका दे दूँगी ताकि अल्लाह आपकी उम्र को लंबी करे और आपका साया हम पर हमेशा रहे। ताजिर अपनी बेगम से बताता है, बेगम आमदनी बहुत हुई है, बहुत मुनाफा हुआ है, हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे इंशाअल्लाह। पीछे से दादी माँ बोलती हैं, हाँ हाँ बेटा, वो हमारी लौती पोती है, अल्लाह तुम्हारे हर मकसद को पूरा करे और तुम्हें तमाम आफतों से बचाए। मैं हमेशा अल्लाह से यही दुआ करती हूँ बेटा। ताजिर अपनी बेटी के पास ज़ेवर लेके आता है और कहता है, बेटी मैं आपके लिए ज़ेवर लेके आया हूँ। ताजिर अपनी बेटी से कहता है, मेरी बेटी ये ज़ेवर पहन के राजकुमारी लगेगी। अम्मी जान आती हैं और कहती हैं, बेटा ये ज़ेवर संभाल के रखना, ये तुम्हारे अब्बू जान की निशानी है। दोस्तों, आगे की कहानी आपको एपिसोड 3 पे मिलेगी। मेरा चैनल देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आबिदा की उड़ने वाली जानेमाज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और उमर समर नाम के चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब हमको जाने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।